زیارت گاہ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، کہ خاک راہ کو میں نے بتایا راز الوندی۔ میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ براہ کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایما ویگناسٹ کے نام جرمن زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہائیڈلبرگ میں ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ ایک ہندوستانی شاعر کا دل ان پر آ گیا، نہ آتا تو حیرت ہوتی۔ ایک تو ماحول رومان پرور، اوپر سے اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں، اور پھر حسین و جمیل ایما۔ فطرت بے ہوش ہو گئی ہے، آغوش میں شب کے سو گئی ہے۔ کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکوں ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ اقبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کے ایما سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس کا کچھ اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ براہ کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائیڈلبرگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ 21 جنوری 1908 کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام خط میں لکھا، میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و کتابت نہیں کرنا چاہتی اور اس بات سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب پھر آپ کا خط موصول ہوا ہے جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے معمور رہتا ہے۔ ایک شرارے سے شعلہ اٹھتا ہے اور ایک شعلے سے ایک بڑا الاؤ روشن ہو جاتا ہے، لیکن آپ سرد مہر ہیں، غفلت شعار ہیں۔ آپ جو جی میں آئے کیجئے، میں کچھ نہ کہوں گا، ہمیشہ صابر و شاکر رہوں گا۔ بال اس وقت نہ صرف شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ یہ الگ بات کہ 18 برس کی عمر میں والدین کی پسند سے کریم بی بی سے ہونے والی اس شادی سے وہ سخت ناخوش تھے۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا، میں نے والد صاحب کو لکھ دیا ہے کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، خصوصاً جبکہ میں نے پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ برطانیہ پہنچ کر مشرق کی پراسراریت سے معمور اور غیر معمولی حد تک ذہین و فطین اقبال نے خواتین کی توجہ مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لی۔ ان سے متاثر ہونے والی انہی خواتین میں سے ایک عطیہ فیضی تھیں جنہوں نے ایک کتاب میں اقبال کے اس دور پر روشنی ڈالی ہے۔ عطیہ کے نام لکھے گئے خطوط کا اگر ایما کے نام خطوط سے موازنہ کیا جائے تو فرق رات اور دن کی طرح واضح ہے۔ اقبال کے دل کی تمنا کچھ اور ہی تھی اور انہیں شک تھا کہ یہ تمنا کبھی پوری ہوگی بھی یا نہیں۔ جلوائے حسن کہ ہے جس سے تمنا بے تاب، پالتا ہے جسے آغوش تخیل میں شباب۔ اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
चुनाचे जर्मनी में उनकी दुआ कबूल हुई और गालिबन एमा की सूरत में उन्हें वो नगी मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसके बाद उन्हें ये लिखने में देर नहीं लगी। जुस्तजू जिस गुल की तड़पाती थी ए बुलबुल मुझे, खूब ये किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे। अपने उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड के मशवरे से जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने 1907 के मौसम बहार में जर्मनी का सफर इख्तियार किया था, जहां उनकी मुलाकात एमा से हुई। एमा 29 साला इकबाल से उम्र में 2 बरस छोटी थीं, लेकिन कद में 1 इंच लंबी थीं। उनकी सिर्फ एक तस्वीर हमारी नजर से गुजरी है, जिसमें उनकी आंखों से वही शरीर तबस्सुम झलक रहा है जिसका जिक्र इकबाल ने उसी दौर की एक गैर मतबूआ और नामुकम्मल नज्म गुमशुदा दस्ताना में किया है। रखा था मेज पर अभी हमने उतार कर, तूने नजर बचा के हमारी उड़ा लिया, आंखों में है तेरी जो तबस्सुम शरीर सा। एमा की मादरी जबान जर्मन थी, लेकिन वो यूनानी और फ्रांसीसी से भी खूब वाकिफ थीं। इसके अलावा वो फलसफे और शायरी से भी खास शगफ रखती थीं, और यही उनके और इकबाल के दरमियान वजह इश्तराक भी है। इकबाल के खतूत से पता चलता है कि उन्होंने एमा के साथ मिलकर मशहूर जर्मन शायर गोएटे को भी सबकन सबकन पढ़ा था। इकबाल ने किसी जमाने में लिखा था, मैंने ए इकबाल यूरोप में उसे ढूंढा अबस, बात जो हिंदुस्तान के माहे सीमाओं में थी। लेकिन ये बात इंग्लिस्तान की हद तक दुरुस्त थी। जर्मनी पहुंचकर उनका ख्याल बदल गया। एक खत में वो लिखते हैं कि अंग्रेज औरत में वो निसायत और बेसाख्तगी नहीं जो जर्मन औरत में है। जर्मन औरत एशियाई औरत से मिलती है, इसमें मोहब्बत की गर्मी है। अंग्रेज औरत में ये गर्मी नहीं। अंग्रेज औरत घरेलू जिंदगी और इसकी बंदिशों की इस तरह शैदा नहीं जिस तरह जर्मन औरत है। अतिया फैजी ने हाइडलबर्ग में जो इकबाल देखा उससे वो हैरान रह गईं। वो अपनी किताब इकबाल में लिखती हैं, ये इस इकबाल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे जिसे मैंने लंदन में देखा था। ऐसा लगता था जैसे जर्मनी उनके वजूद के अंदर समा गया है और वो दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए और घास पर चलते हुए इल्म कशीद कर रहे थे। अतिया के बयान के मुताबिक इकबाल यहाँ जर्मन सीखने के अलावा रक्स, मौसीकी, कश्ती रानी और हाइकिंग के दर्स भी ले रहे थे। अतिया ने एक दिलचस्प वाक़े का जिक्र भी किया है जिससे जाहिर होता है कि मामला यकतरफा नहीं था, बल्कि एमा भी इकबाल से बेहद मुतासिर थीं। हुआ यूं कि एमा ने एक दिन ओपरा गाना शुरू कर दिया। इकबाल ने उनका साथ देना चाहा, लेकिन मगरबी मौसीकी से नावाकफियत की बिना पर बेसुरे हो गए। यहाँ ये कहना जरूरी है कि इकबाल ने बेहद उम्दा गला पाया था, बल्कि हिंदुस्तान में तरन्नुम से मुशायरे पढ़ने में उन्होंने खासी शोहरत हासिल की थी, और जब वो अपना कलाम अपनी सुरीली आवाज में पढ़ते तो इसकी तासीर दोगनी चौगनी होकर बड़े से बड़े मजमे को बहा ले जाती थी। अतिया के मुताबिक एक दिन एमा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर वर्जिश कर रही थीं और इकबाल टिकटिकी बांधकर उन्हें तके जा रहे थे। अतिया ने टोका तो वो कहने लगे, मैं फलकियात दान बन गया हूं, सितारों के झुरमट का मुशाहिदा कर रहा हूं। मौसीकी के अलावा मगरबी रक्स भी इकबाल की दस्तरस से बाहर था। अतिया ने लिखा है कि इकबाल एमा के साथ रक्स भी किया करते थे, लेकिन ऐसे अनाड़ीपन के साथ कि उनके कदम अक्सर ओछे पड़ते थे। इकबाल एमा से शादी करना चाहते थे। एमा के नाम अंग्रेजी में लिखा गया एक खत में इकबाल ने लिखा कि मैं जर्मन भूलता जा रहा हूं, सिर्फ एक लफ्ज याद रह गया है, एमा। एमा 1908 के लगभग हिंदुस्तान जाना चाहती थीं, लेकिन उनके बड़े भाई और खानदान के सरबराह कार्ल ने उस दूर दराज मुल्क में जाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ इकबाल हिंदुस्तान लौटने के बाद बड़ी शिद्दत से यूरोप वापस जाना चाहते थे, जिसका इजहार उन्होंने न सिर्फ कई बार एमा से भी किया, बल्कि अतिया को लिखे गए खतूत में भी इसका इंदिया मिलता है। को लिखते हैं,
कुछ अरसे बाद जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं यूरोप को अपना घर बनाऊंगा। ये मेरा तसव्वुर है और मेरी तमन्ना है कि ये सब पूरा होगा। ताहम ये तसव्वुर, ये तमन्ना नाकाम हसरत बन गई। इकबाल की जिंदगी का ये हिस्सा सख्त माली मुश्किलात से निमटते हुए गुजरा। इस तमाम अरसे के दौरान एमा की याद उनके दिल से कभी महव ना हो सकी। वो बड़ी हसरत से लिखते हैं, मुझे वो जमाना याद है जब मैं आपके साथ मिलकर गोयटे का कलाम पढ़ा करता था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी वो खुशियों भरे दिन याद होंगे जब हम एक दूसरे के इस कदर करीब थे। मैं ज्यादा लिख या कह नहीं सकता। आप तसव्वुर कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे मिल सकूं। मैं जर्मनी में अपना क़याम कभी फरामोश न करूंगा। मैं यहां बिल्कुल अकेला रहता हूं और खुद को बड़ा गमगीन पाता हूं। हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों में नहीं है। 1931 में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए जब इकबाल लंदन गए तो उस वक्त भी उन्होंने जर्मनी जाकर एमा से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका था। इकबाल ने 2 मजीद शादियां कर ली थीं। उन दोनों के दरमियान मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन 7 समंदर हायल थे। एमा से इकबाल के ताल्लुक की बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। ताहम एमा ने इकबाल की म्यूज बनकर उनकी शायरी में वो कसक और दर्दमंदी पैदा कर दी जिससे उनकी शायरी इबारत है। उनके कलाम में कई नज़में ऐसी हैं जो उस दौर की यादगार हैं। इकबाल ने बहुत पहले लिखा था, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। चांद और तारे, कली, विसाल, सलीमी, आशिके हरजाई, जलवाए हुस्न, अख्तरे सुबह, तन्हाई और दीगर कई नज़में शामिल हैं जिन पर एमा से ताल्लुक की गहरी छाप नजर आती है। इकबाल और एमा का मिलाप नहीं हो सका, लेकिन उर्दू दुनिया को फिर भी एमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी बदौलत उर्दू को चंद लाजवाल रोमानवी नज़में मिल गईं। इकबाल को क्या मालूम था कि 1907 में अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल करने के लिए जिस खातून उस्ताद से 6 महीने के लिए जर्मन जबान की क्लास पढ़ेंगे वो उस खातून के ला हासिल इश्क में गिरफ्तार हो जाएंगे।